Hello again, welcome back. Let's continue with permutation and combination. Combination चल रहा है and we are going to solve one big question. So this question is basically dependent on combination. So what happens कि there are 10 friends of college के 10 friends. After long like 20 years later, they all meet together. They have a party. They are having a get together of 10 friends. So these 10 friends are getting together and they have 10 man and 10 wives. And they all are coming to a party hall. And then everybody shakes hand with everybody else. हर आदमी every boy and every man and woman are shaking hand of each other. So how many handshakes will be there in all? Total, how many handshakes will be there? That is your question. So what do we need for a handshake? And you will say, sir, hand. Somebody says, sir, two hand. अच्छा, अगर मैं आपको हैंड पकड़ा दूं अपना यहां से कट करके तो क्या वो हैंडशेक होगा? नहीं. तो बेसिकली वी डू नॉट नीड अ हैंड बट अ मैन एक्चुअली. एंड what else? You don't need just two hands, because I have two hands, I cannot call it a handshake. So what we need is, for a handshake we need two people. So any two people will make one handshake. So total number of handshakes will be, जितने भी तरीके से आप दो लोग पिक कर सके. एंड टोटल अगर अपने पास 20 people are there, so we can pick any two in 20C2 ways. 20C2 तरीके से we can pick two people and every two people will make one handshake. तो into one करेंगे, that will be total number of handshakes. थिंक अबाउट इट. अच्छे से सोच लो, समझ लो. जो भी कंफ्यूजन हो दिमाग में क्लैरिटी लाइए. नहीं है तो वापस से पूरा कॉम्बिनेशन देखो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब हैंडशेक कर लिया. नाउ एवरीवन गॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीबॉडी एल्स, और यू कैन से फॉर देयर किड्स, बट व्हाटएवर. तो सबके पास हर दूसरे के लिए एक एक गिफ्ट है. एवरीबॉडी इज शेकिंग हैंड एंड शेयरिंग द गिफ्ट. सो हाउ मेनी gifts were exchanged? How many gifts were exchanged? कितने gifts exchange हुए? So what do we need for a gift to be exchanged? Again we need two people. मैं खुद को गिफ्ट दे दूं, that is okay. I do that sometime. I get myself something very good, but that is not how it works. When we say, आप लोग करते हैं ऐसा कभी, खुद को कुछ गिफ्ट दे दिया कि चलो आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव डन अ वंडरफुल जॉब, लेट्स गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग. अगेन सम पीपल डू दैट टू गेट अ गिफ्ट, आई विल से. अगेन सो हाउ मेनी गिफ्ट्स वर एक्सचेंज? तो गिफ्ट्स के लिए हमें दो लोग चाहिए होते हैं, एंड टू पीपल कैन बी सेलेक्टेड इन 20C2 ways. एंड दैट इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज अगर दो लोग हैं तो गिफ्ट भी टू एक्सचेंज होंगे. आई एम गिविंग ए गिविंग गिफ्ट टू बी एंड बी गिविंग गिफ्ट टू ए. सो टोटल 20C2 into 2 number of gifts were exchanged. Okay. Now part is done. Now in the morning everybody got up and now they are going to play a game. तो सपोज दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट. अब क्रिकेट में क्या होगा? 11 प्लेयर चाहिए. सो हाउ मेनी 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोस 20, एंड दैट कैन बी डन इन 20C11 ways. लेकिन नॉट एवरीबडी प्ले क्रिकेट.
बट क्रिकेट हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया है. नाउ यार लेट्स प्ले सम अदर गेम. लेट्स प्ले लॉन टेनिस. In how many ways we can play a game? How many teams can we make for a lawn tennis? So if I say singles, so you can simply say 20 two ways. 20 में से कोई भी दो पिक करोगे और you will get 2 people. They can play a game. But if I say कि नहीं, only men will play. That is not good, but let me go ahead from that. So if only men are playing with each other, then there will be 10 two ways you can make a team and you can play the game. And then only women are playing. Only women are playing, so that can be done in 10 two ways. Because 10 में से कोई भी दो pick करोगे, there will be a game. And the most exciting part will be mixed doubles. In how many ways we can make a team to play a mixed double? Mixed doubles के लिए what we need is we need 2 men and 2 women. We need 2 men and 2 women. Let me say we need M1, M2, W1 and W2. These 4 people we need. How many ways we can do that? So what I am going to say कि let's say कि 10 में से कोई दो 10 मेल में से कोई दो मैन पिक कर ले and मतलब into 10 वुमेन में से कोई दो वुमेन पिक कर लिया. Now we have M1, M2, W1, W2 and that will be number of ways or number of teams that can be formed for mixed doubles. ध्यान रखने की बात यह है कि ये wrong answer है क्योंकि ऐसा करने के बाद we have M1, M2, W1, W2 लेकिन इसमें अलग से we have to multiply by 2. Tell me why? Because there are 2 possibilities now. Either M1 will play with W1 and M2 will be teaming with W2, or M1 will make a team with W2 and M2 will make a team with W1. So there are 2 possibilities. Now एक क्वेश्चन आता है कि अगर 20 लोग हैं मिक्स डबल्स खेलने हैं तो वी नीड 4 मेंबर्स तो टोटल 5 टीम्स बनेंगे. दैट इज नॉट व्हाट दिस क्वेश्चंस मीन. द क्वेश्चन लाइक स्टार्टिंग से कर रहे हैं भाई क्रिकेट है 15 प्लेयर्स है 11 की टीम बनानी है. 15 से 11 टीम थोड़ी बनेगी, एक ही टीम बनेगी क्योंकि 2 टीम के लिए 22 लोग चाहिए. दैट इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग हियर. व्हाट इज हैपनिंग हियर इज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स यू कैन मेक. लाइक इन द केस ऑफ वर्ड्स में क्या था, रेनबो. अब रेनबो में अगर आप RAINBOW में से इफ यू वांट टू पिक एनी 4 letters तो यू कैन पिक RAIN, you can pick AINB, you can pick RAIB, you can pick RAIW, you can pick RAIO. So many possibilities. They are not completely different कि भाई एक बार RAIN ले लिया अब दोबारा नहीं ले सकते. नहीं, सेम टू सेम वापस नहीं आएगा. चारों के चारों सेम वापस नहीं आएंगे. तो यू कैनॉट पिक 4 सेम पीपल टुगेदर. बट एक बार M1, M2, W1, W2 तो नेक्स्ट टाइम M1, M2, W1, W3 विल बी ऑल्सो अ टीम. तो सेम टू सेम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए. हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस वी कैन मेक फॉर अ पर्टिकुलर टीम, फॉर अ पर्टिकुलर गेम आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स नॉट कि एक साथ तो 5 टीम ही बना सकते हैं आप, 5 अलग अलग कोर्स अगर आपके पास है तो. बट दैट इज नॉट अबाउट इट. इट इज अबाउट कि how many ways we can pick one team which is different from all other possibilities. You cannot just repeat RAIN 10 बार. नहीं, RAIN सेम टू सेम रिपीट नहीं कर सकते. RAIB, RAIO, RAIW. और अरेंजमेंट की बात है तो RAIN के साथ RAIN ये डिफरेंट माना जाएगा.
सिलेक्शन में दोनों सेम है बिकॉज बोथ कंटेन आर ए आई एंड एन, बट अरेंजमेंट में तो 24 अरेंजमेंट होंगे खाली आर ए आई एन के, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24. सो व्हेन वी से टीम, मतलब एक पर्टिकुलर गेम के लिए जो टीम है वो कितने तरीके से यू कैन पिक, एंड दैट इज मिक्स डबल्स. देन लेट्स डू समथिंग एल्स. मिक्स डबल्स में ही है बट both husband and wife will not play in same game. हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ एक ही गेम में नहीं खेलेंगे, ईदर टुगेदर और अपोजिट, दोनों नहीं खेलना है. उस गेम में होने ही पीछे, हस्बैंड है तो वाइफ नहीं, वाइफ है तो हस्बैंड नहीं. टीम में नहीं, सामने अपोजिट में भी नहीं होना चाहिए. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल नॉट प्ले इन द सेम गेम. नाउ हाउ मेनी वेज वी कैन पिक अ टीम ऑफ मिक्स्ड डबल्स? पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करने का ट्राई करो. What is the scene? Husband 1, husband 2, husband 3, up to husband 10. Wife 1, wife 2, wife 3, up to wife 10. These are the cases. 10 husbands हैं, 10 wives हैं. We have to pick 2 husbands, 2 male, that is 10C2. We have to pick 2 females, that is 10C2. But no, उसमें तो H1, मान लो हमने पहला H1 H3 लिया, कोई भी दो में से, कोई भी 2. अगर कोई भी 2 पिक कर लोगे तो उसमें W1 या W3 भी आ सकते हैं और वो गड़बड़ हो जाएगी. Wives are not supposed to be there if husbands are there, or you can say husbands are not supposed to be there when wives are there. So what we are going to do, what I am going to do now is what I call planning. Planning क्या है? How are we actually going to do that? What are you going to tell a layman कि भाई ऐसा कर लो तो काम हो जाएगा? आप लेमैन को एलसीआर नहीं बता सकते. आपको 15 में से 11 पिक करना है, क्या बोलोगे? भाई जाकर उसमें से 4 को भगा दो और जाओ वहां से 11 पिक करके ले आओ. दैट ही कैन डू. इन दिस केस what will you tell a layman to pick one team of mixed doubles from this 10 man 10 women in which both husband and wife are not playing in the same game? So that is called the plan. तो प्लानिंग क्या है? What are you going to tell? क्या बताने वाले हैं? उसको बोल सकते हैं कि भाई कोई भी 2 हस्बैंड पिक कर लेना. पिक एनी 2 men out of 10, that is 10C2. नंबर ऑफ वेज हम लिख रहे हैं बट प्लानिंग उसको बता रहे हैं, एंड दैट इज 10 में से कोई भी 2 पिक कर लेना. फिर उनकी वाइफ्स को हटा देना. अगर हस्बैंड 1 और 3 पिक किया है तो वाइफ 1 एंड 3 छोड़ के बाकी के जो 8 है उसमें से कोई 2 वाइफ पिक कर लेना, एंड दैट विल बी 8C2. दिस इज फॉर हस्बैंड्स एंड दिस इज फॉर वाइफ्स. और यू कैन से वाइस वर्सा, दिस इज फॉर वाइफ्स. पहले 2 लेडीज पिक कर लो, उनके हस्बैंड्स को छोड़ दो, बाकी जो बचे वहां से 2 हस्बैंड पिक कर लो. Now what we have? Now we have M1, M2, W1, W2, which are not husbands and wife. Then again we will multiply it by 2 because of the same idea. Now M1 can team up with W1 or M1 will team up with W2. This part is called arrangement, but this part is called selection. तो देखो सेम क्वेश्चन में सिलेक्शन भी आया, अरेंजमेंट भी आया. ऑब्वियसली आएगा व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली प्ले द क्रिकेट. जब तक सिर्फ टीम बनानी थी, लोग पिक करने थे तो ऐसा, लेकिन जब टीम अप किया M1 के साथ ये, उसके साथ वो, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट. अरेंज कर रहे हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इधर ये, उधर ये. अरेंजमेंट का मतलब हुआ परमुटेशन. तो ये थोड़ा सा परमुटेशन का टच है, बट फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली, फर्स्ट पार्ट इज कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, टीम, कमिटी. कमिटी भी होता है, कमिटी में भी ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. सो दैट इज वन पार्ट. तो अब जब तक ये क्रिकेट और क्या टिल व्हाट दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टेनिस एंड ऑल दोज गेम्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to inside the house. What's happening inside the house? Where there are
से 20 छोड़ो 15 किड्स आर देयर। इतने सारे लोग आए इतने सालों के बाद, उनके बच्चे भी साथ में आए हैं, तो दे आर टोटल 15 किड्स। और साथ में वन ग्रैंडपा इज ऑल्सो देयर, ग्रैंडफादर इज ऑल्सो देयर। तो वन ऑफ द पर्सन बॉट हिज ग्रैंडपा ऑल्सो अलोंग, और यू कैन से जिसके घर गए उनके फादर हैं, तो वन ग्रैंडपा इज ऑल्सो देयर एंड ही इज very happy with these 15 kids. He is actually loving it कि so many kids are together, they are playing and he is actually enjoying it. उनको बहुत मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ, बच्चे आपस में थोड़ी लड़ाई वड़ाई होने लगी, बोर होने लगे, मैं क्या करूं। दे प्लान की दादू चलो कुछ करते हैं और कहीं चलते हैं। तो दादू ने बोला ओके लेट्स गो टू जू। सो वी आर प्लानिंग फॉर चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर जाना है, बट प्रॉब्लम ये है कि दादू के पास एक स्कूटर है दैट इज कॉल्ड लंब्रेटा और एनी अदर स्कूटर यू कैन से। तो दादू के पास एक स्कूटर है विद अ साइड कार। लेट मी ड्रॉ अ स्कूटर। अगेन लुक्स गुड, तो दैट इज अ स्कूटर, लुक्स मोर लाइक अ व्हाट चींटी जैसा, एंड जैसा लग रहा है, बट वट एवर। सो दिस इज योर स्कूटर। ये आगे का सीट, ये पीछे का सीट, बाइक जैसा ज्यादा लग रहा है, स्कूटर जैसा बनाने का ट्राई करते हैं एंड इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज योर स्कूटर। साथ में क्या है, इसमें एक साइड कार लगी हुई है और साइड कार में देयर आर 2 सीट्स। ड्राइंग मेरे बहुत अच्छी है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा। एंड द आइडिया इज कि यहां तो चलो ग्रैंडपा बैठ जाएंगे। नाउ वी हैव 3 ऑप्शन फॉर किड्स। तो एट वन गो, एक ट्रिप में ओनली 3 किड्स कैन गो। एक बार में सिर्फ 3 बच्चे जा सकते हैं। हाउ मेनी ट्रिप्स ही हैज टू मेक, हाउ मेनी ट्रिप्स ही हैज टू मेक सो दैट एवरीवन visited the zoo, and that can be done in 5 trips only. टोटल 15 किड्स हैं और 3 एक बार में जाएंगे तो टोटल 5 ट्रिप्स में एवरीथिंग विल बी ओवर। बट द आइडिया इज दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। द आइडिया इज कि फर्स्ट टाइम में जो 3 किड्स जाएंगे वो आप कितने तरीके से पिक कर सकते हो। हाउ मेनी वेज वी कैन पिक अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रॉम द टीम ऑफ 15 किड्स। 15 में से ये 3 किड्स आप कितने तरीके से पिक कर सकते हो, and that is 15C3। 15 में से 3 पिक करना है तो that can be done in 15C3 ways। अब इस क्वेश्चन को पूछते कैसे हैं कि 15 kids wants to go to a zoo, in how many ways we can make a team of 3 people, 3 kids, so how many maximum trips can be made, how many maximum trips can be made without repeating the same 3 children again। ऐसे कितने ट्रिप्स आप 3-3 के लगा सकते हो। अगर टोटल देखा जाए तो 5 ट्रिप्स में काम हो जाएगा, बट द कंडीशन इज कि मैक्सिमम हाउ मेनी ट्रिप्स यू कैन मेक सो दैट सेम 3 किड्स विल नॉट बी रिपीटेड। सेम टू सेम 3 बच्चे एक साथ नहीं जाने चाहिए। ए और बी के साथ सी गया है तो अगली बार ए और बी के साथ डी जा सकता है। ए एंड बी कैन रिपीट, ए और बी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ए बी सी सेम टू सेम ग्रुप, सेम टू सेम ट्रिपलेट रिपीट नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली सेम एज 15C3। जितने भी ग्रुप बनाना चाहो, जितने भी तरीके से आप 3 सेपरेट किड्स पिक कर सकते हैं, एंड दैट इज 15C3, जो कि आपने फर्स्ट ट्रिप के लिए पिक किए। अगले बार कोई भी दूसरे 3 पिक कर लेना, लेकिन ये तीनों नहीं होने चाहिए। सो इन टोटल देयर विल बी 15C3 ट्रिप्स if same kids are not going again and again। तो दादू को बहुत मजा आ रहा था। Grandpa was actually loving it, taking them all to Lambretta, on the Lambretta to the zoo, then coming back। तो उनको बहुत मजा आ रहा था। He wanted to take all the
trips, that is possible because if it's like, अरे दादू मेरे को तो B के साथ जाना है, B ने बोला मेरे को D के साथ जाना है, everyone is asking मुझे उसके साथ जाना है. So whatever maximum possibility was there, he did and he total took 15C3 trips. 15C3 का वैल्यू जरा फाइंड करेंगे तो I will get 15 by 3, 14 and 2, 13 and 1. 3 2 जा 6, तो 3 5 जा this and 7. क्या मिला? 91 into 5, that is 455 trips. अगर रोज एक ट्रिप लगाएंगे तो 1 year से ज्यादा लगेगा. Every day he was taking like 5 trips. Still he will need 91 days. But whatever, we don't have to worry about that because one day I read the meme आते हैं ना आजकल, तो meme में क्या लिखा था कि there is one place where you buy 100 watermelons and nobody wonders why. A kid buy 100 watermelons and nobody wonders why. And that place is called maths. Maths की books में होता है ना, if you buy 100 watermelons, every watermelon is costing like 10 rupees or 100 rupees, then what would be the total cost? So this is what happens here. Don't worry about कितना time लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा. Just enjoy the chapter. Enjoy the combinatorics. Enjoy the combination. So in total, he will take 455 trips. Now you can ask, if he's doing that every hour, then how many days he need? If he's doing only 8 trips an hour, how many days he need? That can be done. That is called unitary method. वो आपने बचपन से वो किया हुआ है. But that is not our purpose. Our purpose is कि total how many trips can he make without repeating the same 3 children again? That is 15C3. Now, in every trip, they have to buy tickets. So how many total tickets are bought? How many total tickets are bought? So total tickets bought will be 15C3 into 4. Total tickets will be 15C3 into 4 क्योंकि 3 किड है और एक ग्रैंडपा है. लेकिन ग्रैंडपा इज फ्री. ग्रैंडपा की टिकट नहीं लगती बिकॉज ये सीनियर सिटीजन एंड ही कम्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. बहुत बार जाते हैं, उनका फ्री है. सो देन व्हाट वी नीड? वी नीड ओनली 15C3 into 3. इतने ही टिकट्स होंगे. अब जू में वो दादाजी को पहचानता था. he recognized the grandpa and every time grandpa come with a kid, he used to give him a chocolate. हर बच्चे को एक चॉकलेट मिलती थी. So at the end, how many chocolates are there with every kid? हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली होंगी? That is the question. Every trip पे every kid is getting a chocolate. दादाजी को नहीं मिलती है because उनको शुगर खाने की मनाही है. So he is not supposed to take chocolate. उसको उनके बच्चों ने मना कर रखा है कि नहीं पापा आएंगे, इनको आप चॉकलेट मत देना, इनको चॉकलेट मना है, शुगर मना है. सो व्हाट ही इज डूइंग इज एक्चुअली कि चॉकलेट बच्चों को मिलती है. और बच्चों को चॉकलेट मिलती है तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली होंगी ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड? पूरे एपिसोड में हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव वन चिल्ड्रन गॉट? आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. आप पॉज करके फाइंड कर सकते हो. सो आइडिया इज कि 15C3 ट्रिप्स लगे. हर ट्रिप पे हर बच्चे को एक एक चॉकलेट मिला. तो जितने टिकट्स उतने ही चॉकलेट्स. लेकिन दिस ऑल चॉकलेट्स विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी किड्स? दिस इज डिवाइडेड इनटू 15 किड्स एंड दैट विल बी योर आंसर. 15C3 का वैल्यू अगर मैं निकाला तो दैट वाज 455 into 3 upon 15. This is 5. That gives me 91. So every kid will have 91 chocolates. 91 chocolates for every kid. 3 months चलेगा अगर आप every day खाएंगे तो. 3 months चलेगा because someone will say नहीं सर एक दिन एक्स्ट्रा है ना.
31 वाला भी तो आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि 31 वाले हैं, 2 है तो एक कम पड़ेगा, एक 230 वाला, एक 31 डे वाला है, तो दैट विल बी परफेक्टली ऑल राइट। 28 29 वाला फेब आ गया, तो अल्टीमेटली दिस विल गो अराउंड फॉर लाइक 3 months if he eats 1 chocolate every day. So every kid have got 91 chocolates. Okay. Next question is visit per kid. हर एक बच्चा कितनी बार जू गया होगा? हाउ मेनी टाइम्स एवरी किड इज गोइंग टू द जू? हर बच्चे के पास 91 चॉकलेट्स है। थिंक अबाउट इट, पॉज कर लो, फाइंड करो, ट्राई करो फाइंड करने का। तो हर बच्चे के पास 91 चॉकलेट है, तो वो कितनी बार गया होगा? 91 टाइम्स। तो विजिट पर किड विल बी सिंपली 91 only. Visit per kid will be 91. As simple as that. क्योंकि हर बार एक चॉकलेट मिलती है, टोटल 91 चॉकलेट है, तो 91 टाइम्स वो गया होगा। तो दैट इज फ्रॉम हियर। वैसे एक और आइडिया है, और लेट मी से वन मोर डिफरेंट सिचुएशन। ये जो 15 किड्स हैं, उसमें से एक जो सबसे छोटा वाला है वो दादू को बहुत प्यारा है। उसने तो बोला भाई मेरी तो ये सीट फिक्स है, मैं तो यहां दादू के पीछे बैठता हूं, वो सीट मैंने फिक्स कर ली, मैं स्कूटर से नहीं उतरने वाला हूं, दैट्स फिक्स। आई एम नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ माई सीट, आई विल गो इन ईच एंड एवरी ट्रिप। जहां भी दादू जाएंगे, जब भी जाएंगे, मैं उनके साथ ही जाने वाला हूं, दैट्स फिक्स। अब वो बच्चा हो गया फिक्स। नाउ हाउ मेनी ट्रिप्स ही हैज टू मेक, दैट इज अनदर क्वेश्चन। अब कितनी ट्रिप्स उसको लगाने पड़ेंगे? हाउ मेनी ट्रिप्स डज इट हैव टू मेक? सो आंसर इज कि ये बच्चा फिक्स हो गया। अब अपने पास बचे क्या हैं? वी आर लेफ्ट विद दीज 14 किड्स। 14 किड्स बचे, 15 में से एक तो पकड़ के बैठ गया दादाजी को, एक बचे, एक के बाद बचे टोटल 14 किड्स। और ले कितने जा सकते हैं अभी? वी कैन टेक ओनली 2 ऑफ देम टुगेदर, एंड दैट इज 14 by 2, एंड दिस दैट इज 91। 91 ट्रिप्स होंगे। ऑब्वियसली पिछली बार भी क्या हुआ था, एक बच्चा, अगर मैं बोलूं हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली, मतलब वो कितनी बार गया, अगर मैं उस बच्चे को फिक्स कर देता हूं तो भाई ये तो किड 1 तो फिक्स है, हमेशा जाएगा। सो अब नाउ ही विल बी एबल टू मेक ओनली 91 ट्रिप्स, और हर 91 ट्रिप में इसको मिलने वाला ही है। टू सी दिस 91 इज एक्चुअली मैचेस हियर। तो दिस वाज 2 डिफरेंट अप्रोच। भाई जितने टिकट्स हैं, जितनी बार चॉकलेट्स मिलेंगे, वो सारे चॉकलेट्स को मल्टीप्लाई किया, 15C3 ट्रिप्स इंटू 3 चॉकलेट, उसको 15 टोटल नंबर ऑफ किड से डिवाइड किया, तो 91 चॉकलेट 91 ट्रिप्स। और दूसरे तरीके से देखा कि K1 को अगर मैं फिक्स कर दूं तो बाकी सबको अगर लेकर के जाना है, तो K1 विल डेफिनेटली गो 91 टाइम्स। तो K1 गया 91 टाइम, K2 गया 91 टाइम, K3 गया 91 टाइम, और टोटल 15 किड 91 टाइम्स गए। अगर हर कोई 91 टाइम्स जाएगा तो टोटल 91 इंटू 15 ट्रिप्स हो जाएंगे। एवरीबडी इज गोइंग 91 टाइम, इट मींस 91 इंटू 15 ट्रिप्स हुए? नो, बिकॉज एक ट्रिप में 3 जा रहे हैं, तो अपॉन 3 करना पड़ेगा। Everybody is not going alone. So they are going in a group of 3, K1, K2 and K3. And so this is the total number of trips, which is actually 455 if you see. So this was about a reunion. We can call it a problem of reunion. Okay, so let's finish it here. Thank you.